ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਊ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਊ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ, ਤੁਰ, ਸੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੰਬੇ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ ਵਾਕ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਔਂਕੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਔਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਲਾਬ। ਗੁਲਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਮੀਨਸ ਰੋਜ਼। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਲੱਲਾ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਬੱਬਾ, ਗੁਲਾਬ। ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਿਆ। ਖੱਖਾ, ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਅੜਾੜਾ, ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜਾ, ਕੰਨਾ, ਖਿੜਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਥੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਥੀ। ਗੁਲਾਬ ਖਿਲ ਰਹਾ ਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਖਿੜਿਆ ਸੀ ਮੀਨਸ ਗੁਲਾਬ ਖਿਲਾ ਥਾ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਗੁਲਾਬ ਖਿਲਾ ਥਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਬੁਲਬੁਲ, ਬੱਬਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਲੱਲਾ, ਫਿਰ ਬੱਬਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਲੱਲਾ, ਬੁਲਬੁਲ। ਬੁਲਬੁਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲ ਗੱਗਾ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਗਾ, ਰਾਰਾ ਹਾਹਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। बुलबुल गा रही सी मतलब बुलबुल गा रही थी। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਥੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹ ਰਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾ ਗਾਣਾ, बुलबुल गा रही थी, बुलबुल गा रही सी, ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, फिर असी गल करते हैं उस। हुण जिहड़ा उस यानी असी अगेन बुलबुल की गल तोड़ते हैं। उस दी
आवाज। ये जिन्ने भी लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रही है सारे असी पहला कर चुके हैं, मैनू नहीं लगता कि थोड़ा कोई कन्फ्यूजन होएगी। बुलबुल दी आवाज प्यारी सी। ठीक है, असी मिठी लफ्ज भी यूज कर सकते हैं पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ अद्धक लगता वो असी पहला नहीं किया। बुलबुल गा रही सी मीन्स बुलबुल गा रही थी, उसकी आवाज़ प्यारी सी, या हिंदी च असी कह लिए हर वॉइस वॉज वेरी नाइस, या कह सकते हैं उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। ठीक है, उस जड़ा वर्ड है वो भी हिंदी दे नाल काफ़ी हद तक मैच करता। उसकी जड़ा उन्होंने दी रिप्लेस कर रहे हैं, की दी जगह असी दी कर रहे हैं। उसकी आवाज़ इज सेम, आवाज़ प्यारी सी। ठीक है, तुसी किते भी कन्फ्यूज नहीं होना, बड़े ही आराम नाल इन्हां जेहड़े सेंटेंसिस है इन्हां नूं पढ़ना है ते पढ़ के इन्हां नूं बार बार दोहराना है ताकि तुहानूं पता लग जाए कि पंजाबी दे विच जेहड़े लफ्ज़ ने वो किहड़े इस्तेमाल होंदे ने। ठीक है, फिर अगे मैं चलदी हां। हुण लफ्ज़ है उस्ताद। उस ऊड़ा ऊड़े नूं औंकड़ सस्सा उस, तत्ता कन्ना दद्दा। उस्ताद मीन्स योर मास्टर, योर यू कैन से भी थोड़ा जड़ा गुरु है उन्होंने उस्ताद कहने हैं। उस्ताद बहुत बहुत जड़ा लफ्ज़ है बहुत, ठीक है, बहुत उदास सी। टीचर वॉज वेरी सैड। ठीक है, फिर असी कहने हैं सुषमा खुश सी। ठीक है, सुषमा खुश सी। हुण जिहड़ा उस्ताद है वो उदास है ते सुषमा जो है उहदी जो है स्टूडेंट है ते स्टूडेंट जो खुश सी। ओहो मैं जिहड़ा शब्द जोड़े वो बार बार नहीं दोहरा रही। एक चुस्त कुड़ी सी। ठीक है, गुलाब खिड़िया सी, बुलबुल गा रही सी, उसकी आवाज़ प्यारी सी, उस्ताद बहुत उदास सी, द टीचर वॉज वेरी सैड, या फिर कह सकते हैं गुरु बहुत उदास था या उदास थी। सुषमा खुश सी, सुषमा वॉज वेरी हैप्पी और हैप्पी। ये भी कंटिन्यूस है। ठीक है, पास कंटिन्यूस। वो एक चुस्त कुड़ी सी, शी वॉज अ क्लेवर गर्ल। ठीक है, सुषमा जी वो एक चुस्त कुड़ी सी। एक सेंटेंस जड़ा वो होर ले लेने आप कर ले 1 2 3 4 5 6 एक और कर लेने। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जेडे वो लंबे ने ते मैं ज़्यादा सेंटेंसेस ना करा के थोड़े करावांगी। ठीक है, शाहीन। शाहीन हुण मैं एक जेड़ा मोहम्मदन नेम जेड़ा नाम है वो ले रही हैं। शाहीन, शाहीन मुसलमान सी। मैं लफ्ज़ जोड़ा है मुसलमान थोनू कराया इसलिए मैं जान के नाल लै रही हाँ।
मुसलमान मीनस मोहम्मदन जेड़े मुस्लिम लोग होंदे ने। शाहीन मुसलमान कुड़ी सी और एक मुस्लिम कुड़ी सी, ये कह सकते हो। या फिर तुसी सीधा भी कह सकते हो कि शाहीन मुसलमान सी ते लास्ट असी लवांगे ओहो मीन्स असी वापस जेड़ा शाहीन की गल कर रहे हैं। ओहो कुरान पढ़ रही सी। पप्पा डाड़ा डाड़े नूं थल्ले छोटा जा हा अद्धा हा जिहड़ा है वो असीं इत्थे बनाउने आ। इहदे बारे में अगे जाके गल करांगी। जिहड़े पैर दे विच लगण वाले अखर ने, पर इत्थे तुसीं पढ़ जिहड़ा वर्ड है ਉਹਦੇ थल्ले हा लाना है। ओह कुरान पढ़ रही सी, ठीक है। शी वॉज रीडिंग कुरान, ठीक है। शाहीन वॉज अ मुस्लिम गर्ल, शी वॉज मुस्लिम एंड शी वॉज रीडिंग कुरान। कुरान जिहड़ी है वो होली ग्रंथ है मुसलमाना दा, जिन्हों कि वो लोग जिहड़ा पवित्र ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। शाहीन मुसलमान सी, वो कुरान पढ़ रही सी। ते अज दे लई इन्ना ही काफ़ी है, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करती हैं कि तुसी इन्ना सारे ही सेंटेंसिस नूं बार बार पढ़ के तुसी जिहड़ी टेक्नीक है पंजाबी दे विच तुसी किद्दां पास्ट सेंटेंस किद्दां कंस्ट्रक्ट करना है। हालांकि जिहड़ा स्ट्रक्चर है मैं उहदे वल इन्ना नहीं जा रही। असी जद ग्रामर वल जावांगे, ग्रामर असी करांगे, उस वेले मैं तुहानूं फिर दसांगी कि किद्दां पास्ट टेंस जिहड़ा वो क्रिएट करीदा है। पर फिर भी इन्हां जिहड़े सेंटेंसिस ने इन्हां नूं बार बार बोल के बार बार लिख के तुसी अपने जिहड़े वर्ड्स ने जिहड़ा स्ट्रक्चर है उन्होंने मजबूत कर सकते हो। तो मैं पूरी उम्मीद करती हाँ कि जद भी असी एक दूजे दे रूबरू होवांगे तो मैं तुहाडे कोलों पंजाबी दे विच गल करन लई कहांगी ते तुहानूं पास्ट दी ते थोड़ी जी इंपैरेटिव दी ते थोड़ी जी प्रेजेंट दी पंजाबी दे विच नॉलेज होएगी। तो या फिर किसी होर नाल भी जब तुसी गल करो तो तुहानूं इहदी पूरी नॉलेज होएगी कि किद्दां अपनी गल कहनी है, ठीक है। तो ये तो बाद मैं सिर्फ इन्ना ही कहना चाहनी है कि जो तूफानां नूं हस के चलदे ने, जो तूफानां नूं हस के चलदे ने ते उही जिंदगी दे विच मुश्किलां नूं ठलदे ने। भाव यही है कि जिहड़े लोग अपनी जिंदगी विच आने वाले जिहड़े वड्डे वड्डे तूफान ने, जिहड़ियां मुश्किलां ने, उन्हां दा टाकरा हिम्मत नाल करदे ने, उन्हां तो डरदे नहीं ते हस के उन्हां नूं जिहड़ा है पार लंघदे ने, उही जिंदगी दे विच कामयाब हुंदे ने। मेरा कहण दा यही मतलब है कि ये ना सोचो कि असी घर बैठ गए हाँ तो असी बोर हो गए हैं घर बैठ के, क्योंकि जनरली मैनू ये स्टेटमेंट सुनने को मिलती है कि असी बाहर निकलना चाहते हैं, असी कुछ कर नहीं सकते घर बैठ के। ये लोगों की बहुत वड्डी गलतफहमी है कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े काफ़ी टाइम तो इस गल की वेट कर रहे थे कि असी अपने घर दे विच नहीं रह पा रहे। तो घर दे विच जो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हुंदा है उहदे विच तुसी ज़्यादा वधिया तरीके नाल अपने अंदर की जिहड़ी क्वालिटीज़ ने, जो थोड़े अंदर कॉम्पीटेंस है, जो चंगियां चीज़ां ने उन्होंने बाहर कढ़ सकते हो पूरी मेहनत करके। सिर्फ तुसी इन्ना करना है कि तुसी अपने आप नाल बैठना है, अपनियां गलतियां नूं एनालाइज करना है ते उन्हां दे उत्ते काम करना है। तो इसे उम्मीद नाल मैं एक बार फिर मिलांगी अगले हफ्ते नवीं मात्रा ते नवे शब्दां दे नाल। उदों तक शबा खैर।
ਬਾਏ।